اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, I am your host Dr. Jameel Rathod, and you are watching your favorite Quranic religious program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format of our program, first we shall give you the recitation of holy verses, and our today's lesson consists of verse number 53 to 61 of Surah Sad of the 23rd part of Al-Quran. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran. As you know, Allah Tabaraka wa Ta'ala says in holy verses of Al-Quran, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.
صدق الله العظيم. Dear viewers, we were listening the holy verses and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. هذا ما توعدون ما توعدون ليوم الحساب ليوم الحساب إن هذا لرزقنا لرزقنا ما له من نفاد من نفاد هذا وإن للطاغين للطاغين لشر مآب لشر مآب جهنم يصلونها يصلونها فبئس المهاد فبئس المهاد هذا فليذوقوه فليذوقوه حميم وغساق حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this text is followed by Urdu and English translation. In the end, we also give you the brief explanation of these holy verses. So this is a very, very important program in which we give you the translation, we give you recitation, as well as we also give you the explanation of the Holy Quran. So keep on watching this program and stay with us.
in Roman, هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من नफाद। इन उर्दू, ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था कि रोज़े हिसाब तुम्हें मिलेगा। बेशक ये हमारा दिया हुआ रिस्क है जो कभी खत्म न होगा। In English, this is what you are promised for the day of reckoning. Undoubtedly, this is our provision which will never be exhausted. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا وإن للطاغين لشر مآب जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद। इन उर्दू, ये तो परहेजगारों के लिए और बिलाशुबा सरकशों के लिए बुरा ठिकाना होगा, यानी जहन्नम। वो दाखिल होंगे उसमें तो ये कितना तकलीफदेह बिछौना है। This is for the believers, but undoubtedly for the contumacious is the evil resort. Hell, they shall enter it. What an evil couch. هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق। इन उर्दू, ये खौलता पानी और पीप है, बस चाहिए कि वो इसे चखें। This is for them. Therefore, let them taste it, boiling water and pus. وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار। और इसके अलावा इसकी मानंद तरह तरह का अजाब। ये लो, दूसरी फौज घुसना चाहती है तुम्हारे साथ, कोई खुशामदीद नहीं उन्हें, ये जरूर आग में जाने वाले हैं। And other torments of the same nature. They will be told, this is a troop of yours rushing in along with you. They will say, let them not get any open place. They are indeed to enter the fire. Let them remain there too in a strained place. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا بل أنتم
अंतुम ला मरहबम बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फबिअसल क़रार। वो कहेंगे जालिमों, तुम्हें कोई खुशामदीद न हो, तुमने ही आगे किया इस अजाब को हमारे लिए, सो बहुत बुरा ठिकाना है। The followers will say, Nay, rather you should not get an open place. You brought this distress to us. Therefore, what an evil destination it is. فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا هذا فزده عذابا ضعفا في النار। कहेंगे, ऐ हमारे रब, जिस बदबख्त ने आगे किया है हमारे लिए ये अजाब, पस बढ़ा दे उसका अजाब दुगना आग में। They will say, O our Lord, whoso brought this distress to us, increase him in torment twofold in the fire. नाज़रीन किराम, हमारा आज का सबक अपने इख्तिताम को पहुँचा। हस्ब वादा इन आयात की तफसीर पेश खिदमत है, और अल्लाह तबारक व तआला भी इन आयात में वादा फरमा रहा है, हादा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, कि तुम ये कहा करते थे योम हिसाब कब आएगा। जन्नती इंतज़ार किया करते थे कि काश योम हिसाब आ जाए, हमें जन्नत मिल जाए, और दोज़खी मजाक उड़ाया करते थे कि जब मर जाएंगे, जब गल जाएंगे, गल सड़ जाएंगे, और हम जब जल कर खाक हो जाएंगे, मर कर राख हो जाएंगे, हमें दोबारा ज़िंदा कौन करेगा, पैदा कौन करेगा। तुम आज़ाब की बात करते हो, जब हमारी हड्डियाँ गल सड़ जाएंगी तो उन पर आज़ाब किस तरह नाजिल किया जाएगा। ये एतराज़ आज भी हैं, कल भी हैं। कुछ नादान दोस्त भी हमारे एतराज़ किया करते हैं कि सब मर गए, सब जल गए, हड्डियाँ गल सड़ गईं, और बाज़ ये भी कह देते हैं कि अंबिया किराम भी माअज़ल्लाह गल सड़ गए हैं। तो ऐसी जब कंडीशन हुआ करती है तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा याद आया करता है। ये किसी सूफ़ी का, किसी वली का, नबी का वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। लोग ये कह दें कि जनाब ये सूफ़ी ने वादा किया था, नबी ने वादा किया था, इसके पास क्या इख्तियार था, लेकिन ये तो अल्लाह का वादा है जो ज़बान मुस्तफ़ा से अदा होता है। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप जो कुछ बयान करते हैं वो अल्फाज वो ज़बान आपकी होती है, अल्फाज आपके होते हैं। बाज़ औक़ात वो अल्फाज के मानी आपके होते हैं, अल्फाज हमारे होते हैं। जो कुछ आपकी ज़बान से अदा होता है वो हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला से वही से होता है। चुनांचे फरमाया, हादा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, के जैसे देखो तुमसे जो वादा किया था अब यौम हिसाब आ गया है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैदान हश्र में मीज़ान आदल पर ये खिताब फरमाएगा कि यकीनन अब देखो जो जन्नती हैं वो जन्नत में चले जाएं, उनको सारी नेमतें मिलेगी, ऐसा रिस्क दिया जाएगा जिसकी कमी का अंदेशा नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है कि अपनी रियाया है, मुलाजिमीन है, अम्माल हुकूमत हैं, और दीगर कोई हर शख्स चूँकि एक मुनसिफ है, कोई अपने घर में बड़ा है, अपने घर का वो जज है, लिहाजा अब जिसके हिस्से में जितने भी उसके अमाल आ रहे हैं, औलाद आ रही है, अहलो अयाल आ रहे हैं, अब सबकी किफ़ालत चूँकि उसके ज़िम्मे पर है, लिहाजा हर आदमी एक जज है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुम दुनिया में ख़र्च करने से डरा करते थे, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह में डरा करते थे, कहीं हमारी दौलत ख़त्म ना हो जाए, हम मस्जिद में इतना दे देंगे, पीछे रिजर्वायर्स कम हो जाएंगे, हम मदरसे में लगा देंगे, ये हो जाएगा, जिहाद पर लगा देंगे, ये हो जाएगा, हम अल्लाह की राहों में ख़र्च करेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मेरे यहाँ ये हिसाब व किताब नहीं है, जाओ जन्नतियों, जन्नत में चले जाओ, वहाँ पर रिज़्क़ की कमी का कोई मसला नहीं है, तुम्हें रिज़्क़ कसीर और वाफिर अता किया जाएगा, तुम्हें सारी नेमतें दी जाएगी। और बार बार ये मज़ामीन कुरान में बयान करके इंसान के जहन पर दस्तक दी जाती है, उसे अल्लाह का वादा याद दिलाया जाता है कि वो अच्छे काम करेगा, जन्नत में हुर गिल्मा मिलेंगी, बेहतरीन लिबास मिलेगा, बेहतरीन
तकिए मिलेंगे, काउचेस मिलेंगे, नीचे से नहरें बह रही होंगी। और फिर अल्लाह जन्नतियों के साथ दोज़खियों का भी जिक्र करता है कि जब दोज़ख में लोग चले जाएंगे वहाँ क्या होगा, वहाँ पर उन्हें पानी नहीं मिलेगा, वहाँ पर उन्हें खोलता हुआ पानी जो कि पीप और पस उसको मिला हुआ होगा वो उन्हें दिया जाएगा, मजबूरन उसको पी रहे होंगे, दुहाई दे रहे होंगे। एक तबके को जहन्नम में डाला जाएगा, उनसे कहा जाएगा लो इंतज़ार कर रहे हैं, दूसरा तबका भी तुम्हारा हाजिर है। बड़े बड़े जो गुरु होंगे उनको कहेगा ये एक चेलों का ग्रुप आ गया, दूसरा भी हाजिर है। वहाँ पर कोई किसी को खुशामदेद नहीं कहेगा, बल्कि एक दूसरे पर लान और तान कर रहे होंगे। मुबारकबाद तो जन्नती एक दूसरे को दे रहे होंगे। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में इन मज़ामीन पर और कुरान की इस याद दहानी पर सही मानों में हाजिर होकर बिल्कुल फर्म बिलीव के साथ तफक्कुर, ताक़ुल, तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा